At first, very good morning, class. Yeah. So we are discussing a very good topic, right? A very good class as well. What is the immunology and immunotechnology, right? So in immunology and immunotechnology, let me just remind something. Whatever we have completed last week, we had completed what is immunity. Immunity is that it is the ability of the host protection from disease, toxins, infectious disease, toxins, then cancer cells. Clear? Then come to the immunosystem. Immunosystem is the cellular and molecular components which is responsible for immunity. Right? उसके बाद हमने पढ़ा था immune response. When a pathogen enters your body, your immune system is there. What kind of molecules they will secrete, how they will attack, how they will correlate, how they will interact with the pathogen. That is your immune response. Clear? Then we got immunology. What is immunology? The study of immune system, immune response is known as immunology. In this concern, we had started last class because we are surrounded with a pathogenic organisms, okay, and we had completed last class pathogen. Okay, broadly pathogen has been classified into 5 classes: bacteria, virus, fungus, protozoa, helminthes, worms. Apart from that, there are some infectious protein particles are also there, that is prions. Although that is not important for the exam point of view, but all these 5 are important. Here, just for information, I have just sometimes what happen for information, I will put some slides. It may not be useful for this exam, but it may be used for further and further. Okay, so this much we have completed. Clear? Any doubt? No doubt? नहीं तो ऐसे बात होगा. एक स्टूडेंट ने पिज्जा ऑर्डर किया. क्या ऑर्डर किया? किसको ऑर्डर किया होगा? किसको ऑर्डर प्लेस किया होगा? डोमिनोज, राइट. सोनाली ने डोमिनोज को ऑर्डर किया. ओके, चलो इसके सोनाली पिज्जा PIJJA पिज्जा. कोई बात, इसमें सॉरी बोलने की भी जरूरत नहीं है. इसमें अब तक कुछ सॉरी हुआ ही नहीं है. हाँ, कोई बात नहीं, होता है. इसलिए बोला सामने. हाँ, क्या ऑर्डर किया? पिज्जा डिलीवरेबल भैया क्या सोनल के देखे भी चला गया. सोनल ने पिज्जा खोला और कंप्लेन किया डोमिनोज को ना. फोन लगा, अरे भाई आपने कौन सा पिज्जा दिया है? ये तो बस रोटी है ना, उसमें शिमला मिर्ची है ना, टमाटर है ना, जेलोपिनो है. इतना तो मोटा रोटी तो घर में मामा ही बनाते भाकरी. ये क्या देखे चला गया इतना हार्ड. वो बोला हमने सही डिलीवरी की है मैडम. ये बोला नहीं, आपने तो ऐसे दिया है, मेरा सामने दिख रहा हूँ ना, उसमें जेलापिनो है ना, टोमेटो है ना, कैप्सिकम है, और कुछ डालते ना, टॉपिंग है, मशरूम है, चीज है, कशु नहीं. आ शू पिज्जा छे? आ तो भाखरी रोटी छे. इतना हार्ड रोटी तो मेरा मम्मी तो अच्छा बनाते उससे. हाउ कम? वो पिज्जा वाला तो पिज्जा ही दिया है. हाँ, फिर बोला मैडम आप चेक कीजिए, बॉक्स उल्टा खोल दिए होंगे. सो समझना सीधा ही है, नहीं तो पिज्जा को भी आप क्या बनाओगे? भाकरी बना दोगे. गॉट इट? और फिर बोले फोन करके, मैडम आप काम कीजिए, बॉक्स उल्टा कर दिया, सीधा कर लीजिए, हो जाएंगे. नहीं तो अच्छा चीज भी अच्छा नहीं होंगे. सही से समझना, आपको सीधे से ही समझना है. ओके, सो नाउ वी कैन स्टार्ट. Now I will come to today's topic, that is immunosystem. Okay, don't read anything, please stay with me, stay connected to my voice and try to understand me. Okay,
We know there is immune system, clear? What is the work of the immune system? Immune system, it defend, it is a system which secretes some kind of molecules which is associated with some kind of cells, because प्रोटीन सिक्रेशन होना, कुछ सिक्रेशन होने के लिए कुछ तो सेल चाहिए, बिना ऐसे थोड़ी स्पॉन्टेनियस सिक्रेशन होंगे। तो बात है कि देयर आर सम काइंड ऑफ सेल्स, टिश्यूज which will secrete some molecules. Now these molecules may respond for the immunity. Am I clear? Now the cells, molecules, organs, tissues, this is known as immune system. The molecule is also known as the immune system. When the way of working, that is known as immunity. Clear? Now ये क्या करता है? Only the immune system is not only secrete some molecule, it defends, yeah, it protects you against three things. You have to remember three things. One is pathogen, second one is toxin, third one is cancerous cell. Not only pathogen. Okay. Now pathogen मतलब समझना ना, दो organism which causes infectious disease. Okay. Now I will not tell about the infectious disease. I will just tell a pathogen. That means coronavirus is a pathogen. Am I clear? TB bacteria is a, मतलब tuberculosis, microtuberculosis is a pathogen. Okay. Am I clear? Done. Okay, good. So now in short, how will you remember the immune system? Nothing, simple. Cellular and molecular component responsible for immunity. Simple. आप इतना भी लिखोगे, हाँ, I will tell you something. When एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे ना, सीधा लिख सकते हो व्हाट इज सेलुलर मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑफ द इम्यूनिटी, दैट्स ऑल। आप पूरा सेंटेंस लिखने का जरूरत नहीं है, एग्जामिनर को पता है, आप उसको समझाना जरूरत नहीं है। जब लिखते हो ना आंसर को पॉइंट पॉइंट करके लिखो, पॉइंट बाय पॉइंट, क्योंकि एग्जामिनर को तो आता है, वो जानना चाहता है आपको आता है नहीं आता है। समझ रहे? हम हिस्ट्री नहीं लिखेंगे, इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, समझ गए? व्हाट इज इम्यूनोलॉजी, ऐसे नहीं लिखना है द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द इम्यूनो सिस्टम, द साइंस डील्स विद इम्यूनो सिस्टम, इम्यूनिटी, फुल स्टॉप। मैं क्या बोल रहा हूं, दैट इज फॉर मी ओनली। इसमें आपका टाइम बचेंगे, इजी होगा आपके लिए। हाँ, बोलने का टाइम आप अलग से बोलना पड़ेगा जब पूछोगे ना, क्योंकि आप बोलने का टाइम सब सुन रहे। मेरा सब्जेक्ट का बात कर रहा हूं मैं, टू दी पॉइंट लिखो, टू दी पॉइंट, पॉइंट वाइज। मेरा पेपर में चेक करूंगा कौन करेगा। अनलेस अनटिल आपका कंप्लेन नहीं है तो दूसरा आपका पेपर को चेक नहीं करेंगे। अगर आपको लगा आपका कोई मार्क कम कर दिया मैंने तो दूसरा कहीं जाएंगे, अदरवाइज आई विल कर। ओके, प्राइमरी चेकिंग तो नहीं करूंगा। Clear? So now what is immune system? The cellular and molecular component responsible for immunity. Immunity देने के लिए उनका पीछे जो भी मॉलिक्यूल, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, सारे को हम इम्यूनो सिस्टम बोलते हैं। Now broadly your immune system या any organism's immune system is divided into two categories. Okay, one is innate, the other one is adaptive. Innate means क्या है? Innate means in house, घर का, ठीक है? हाँ, मतलब innate मतलब घर का, ऑलरेडी है आपके पास। ओके, एडप्टिव मतलब क्या होता है? एक्वायर करना। जैसे पापा का कुछ प्रॉपर्टी था, वो घर का था, आपको मिलेगा ही, मिल गया, दैट इज योर इनेट। एडप्टिव क्या होता है? आपने इनकम किया, कुछ मेहनत करके ऐड किया, उसमें एडिशन किया, दैट इज योर एडप्टिव। जब घर का होगा, पापा का होगा, तो आपका आपका बेटा को भी जाएगा, उनको उनको बेटा को भी जाएगा। सो इनेट क्या होता है? ट्रांसफर होता है। इट इज इनबॉर्न एंड इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू या मदर टू देयर चिल्ड्रन।
बट एडेप्टिव क्या होता है, आपने आपने खुद कुछ इनकम किया है, आपका ग्रैंड पेरेंट का प्रॉपर्टी, ये रूल है, आप ग्रैंड पेरेंट का मतलब आपका पापा का प्रॉपर्टी आप ऐसे बेच नहीं सकते, आपका बेटा कंप्लेन करेगा नहीं आप नहीं बेच सकते, नहीं बेच सकते, उसको भी उसमें हक होगा क्योंकि आपने अर्न नहीं किया है, समझ रहे। आपका पापा का पास जो प्रॉपर्टी आपको मिला है, आपने आपका अगर बेटा बड़े हो गए हैं, आप इसको बिना इन्फॉर्म करे बेच नहीं सकते हो, वो बोलेंगे उनको भी बुलाओ जितना लोग है, क्योंकि आपका नहीं है, पर आपने जो अर्न किया होगा जा मैं दे दूंगा तुम्हें जो करना है कर, कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि आपने अर्न किया है। सो आपने जो अर्न किया है ट्रांसफर नहीं होगा। सो थिंग इज दैट लाइक दैट। सो इनर्ट इम्यूनिटी इज कमिंग अलोंग विथ बर्थ, पैदा होने का साथ आता है और वो साथ में जाएगा, अपकमिंग जनरेशन में जाएगा धीरे धीरे। पर एडप्टिव इम्यूनिटी जैसे आपने अर्न किया, एडप्टिव इम्यूनिटी, एडप्टिव मतलब एडप्शन होने का, अर्न किया आपने, उसको क्या बोलते हैं, अर्न किया है, उस केस में ट्रांसफर नहीं होंगे। जैसे कि कोई बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए सिक्स एप्स बनाते हैं ना, डोले सोले बनाते हैं, उनका बेटा थोड़ी बॉडी बिल्डर पैदा होता है, उसको भी बॉडी बिल्डर बनने के लिए उतना मेहनत करना पड़ेगा, लाइक दैट वो एडप्टिव है। आपका पास जो एडप्टिव इम्यूनिटी है, आपका बेटा या उनका ऑफस्प्रिंग में नहीं पास होंगे, उसको भी अर्न करना पड़ेगा। ओके, बट कुछ डिसीज ये जेनेटिकली वो अगर आपका पास है तो आपका बेटा सेम। सो देयर इज वन इज इनेट जो ऑलरेडी है, पैदा होने का साथ विरासत में मिल जाता है, अनदर इज एडप्टिव। सो इनेट इज कम अलोंग विथ बर्थ। ओके, ये बर्थ का साथ आपको मिलेंगे, कम अलोंग विथ बर्थ। नाउ इट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, but when come to adaptive developed after birth, we will discuss later on. This is just a for your memorizing, this slide is for your just correlating, we will discuss each one of them okay broadly. Okay, adaptive unit, there is one unit, second unit is completely for adaptive unity, first unit is your innate immunity. Anyway, we will discuss on that. Anyway, the thing is that innate come along with birth, adaptive developed after birth. Clear? This is the first line of defense. This is second line of defense. First line of defense, second line of defense. If first line of defense, there is no specificity, कोई specificity नहीं है। Just like आपका घर है, आप घर में बैठे हो, कोई भी गेस्ट आया, पहला आप क्या पानी ग्लास दोगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका फ्रेंड, पापा का फ्रेंड, मम्मी का फ्रेंड, आपका बहन का फ्रेंड या भाई का फ्रेंड, एम आई क्लियर, या आपका रिलेटिव, इरेस्पेक्ट से आप क्या करोगे, पानी, एक ग्लास पानी दोगे। दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, दैट इज इनेट एंड इट इज इक्वली टू ऑल। बट अगर हॉर्स, राइट, हॉर्स, हॉर्स का घर में रुसफ जाएगा, रुसफ को कोका कोला पसंद है, कोका कोला पसंद है सपोज टू, दोनों फ्रेंड उसको पता है, तो क्या करेगा, पानी तो देगा, फिर बाद में ऑर्डर करेगा कोका कोला। यहाँ पे हुआ एडप्टिव, क्योंकि आपने ऑन किया है चीजों को, फ्रेंडशिप में आते आते ऑन किए। अगर आपने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया है पे, ये एडप्टिव है, पर पानी देना सभी को, दैट इज इनेट। अच्छा, आप इसको कोका कोला दिए, अगर कोका कोला देंगे तो आपको याद तो रखना पड़ेगा, हाँ हर्ष को कोका कोला चाहिए, श्रीराज को निमका चाहिए, ठीक है, या तीर्थ आएगा तो उसको पिज्जा चाहिए। जहां पे स्पेसिफिसिटी होगा वहीं पे मेमोरी होगा, राइट, जहां पे स्पेसिफिसिटी होगा वहीं पे मेमोरी एसोसिएट है, किसको क्या चाहिए,
पर जहां पे स्पेसिफिक नहीं है, आपका घर में कोई भी आ रहा है गिलास पानी दो ना भाई, कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। सो इनेट में देर इज नो स्पेसिफिसिटी, नो मेमोरी। पर एडप्टिव में स्पेसिफिसिटी भी है, मेमोरी भी है। कितना पॉइंट हम अब याद रखें? 4 पॉइंट। वेरी सिंपल। एक है इनेट, दूसरा एडप्टिव। इनेट फॉर्म बाय बर्थ, राइट। यहाँ पे डेवलप आफ्टर बर्थ नहीं, डेवलप आफ्टर बर्थ। आपने ये बाय बर्थ लिखो चलेगा, पर ये आफ्टर बर्थ लिखो तो आफ्टर व्हाट? आफ्टर बर्थ डेथ। हाँ, गुड। डेवलप आफ्टर बर्थ, तो एक है बर्थ। सेकंड पॉइंट नहीं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन। बाद में आता है, बाद में तो सेकंड ही है। इतना याद रखना, बाकी कुछ याद रखना ही नहीं है। घर का है, इनेट मतलब घर का है। अरे याद कुछ याद रखना ही नहीं लाइफ में, सारे चीज इमेजिन करो। आप इमेजिन करके अगर फिट करोगे कभी बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे याद रखोगे ना, एग्जाम खत्म, ज्यादा सेमेस्टर याद रखो फिर भूल जाओगे। नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खाना भूल जाओ, पर इम्यूनोलॉजी तो याद रखना ही है, क्योंकि आप जब जहां पे सारे स्प्रेड होंगे, पूरा सोसाइटी में इम्यूनिटी बनना चाहिए, सोसाइटी को सारे में। दैट इज माय पर्पज। मेरा पर्पज ही है। आप घर में जाओगे, बड़ा होगे, आपके बच्चे होंगे, ये होंगे, और जहाँ पे रहोगे ये सारे चीज आपको दिमाग में रहेगा, तो बीमार कम पड़ोगे। अगर आप बीमार कम पड़ोगे, आपके घर वाले बीमार कम पड़ोगे, तो आप ज्यादा सोच सकते हो। आप ज्यादा सोचोगे तो ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। आप आगे बढ़ोगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। सीरियसली, seriously, I'm thinking up to that level. Okay, so second by birth, first line, second line. Then very good, non specific। अगर नॉन स्पेसिफिक है तो नो मेमोरी, याद रखने का जरूरत नहीं। सॉरी, स्पेसिफिक है तो मेमोरी होगा ही होगा। किसको क्या चाहिए तो याद रखना ही पड़ेगा। क्लियर? बट वन इज दैट, मुझे बताओ, घर में कोई आया है, आप इसको ग्लास पानी दोगे, कौन सा इम्यूनिटी है? इनेट। घर में तीर्थ आया है ऋषभ का घर में, और उसको पिज्जा मंगा रहा है, कौन सा? दोनों में टाइम कौन सा लगेगा? टाइम ज्यादा। वेरी गुड, 5th पॉइंट में ऐड करेंगे। दिस इज रैपिड, स्पीड हो जाएगा, बट इट टेक्स टाइम। जहां पे एडप्ट वहां पे क्या लगेगा? टाइम लगेगा। सो 5th इज स्लो रैपिड रेस्पॉन्स टू वाइड रेंज ऑफ माइक्रोब्स। वाइड रेंज। पानी ग्लास आप देंगे, हर किसी को दे सकते हो, घर में कोई भी आए। बट पिज्जा अगर देना है तो ऋषभ को ही देना है, भक्ति को आप नहीं दे सकते, भक्ति को पिज्जा पसंद नहीं होंगे। उसके लिए दूसरा कुछ आपको सोचना पड़ेगा। आइसक्रीम, वो भी आइसक्रीम में वेराइटी होंगे। या सैंडविच, उसमें वेराइटी होंगे। क्लियर? सो 5th पॉइंट इज show rapid response to wide range of microbes। wide, non-specific है wide। slow, response is slow, and specific response। specific, ये non-specific and specific don't same। so I think now you can look at this slide। I will give you only 1 minute to understand। if you have any question you can ask me। मैं आपको समझा दिया स्लाइड को। एक बार स्लाइड को 1 मिनट के लिए देखो, 1 मिनट बहुत टाइम होता है। If you have any question, you can ask me। Why only five people are online? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मुझे क्यों देख रहे हो? रुजा, yes।
आवश्यक नहीं, जैसे कि प्रेगनेंसी का टाइम पे मम्मी को टीबी हुआ है तो बच्चे को ऐसा नहीं बाद में वो एंटीबॉडी इसमें ट्रांसफर होंगे नहीं। देखो इम्यूनो सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं अभी ये ऑलरेडी रिसर्च करके रखा गया है, पर आगे क्या होगा हमें ही पता नहीं है। हो सकता है अगर कोई रिसर्च कर प्रूव किया होगा तो ट्रांसफर भी होंगे, अभी तो हमने पढ़ा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। साइंस ऐसा क्या चीज है वो डेवलप होता रहता है। हमारा पास जो नॉलेज है, जो नॉलेज गेन हुआ है वो कोई रिसर्च करके प्रूव किया, रिसर्च प्रूव किया तो होगा, हम फिर मानेगा हो रहा है। समझ रहे? हाँ, उसी कुछ टाइम तक उसका बॉडी में एंटीबॉडी हो रहता है क्योंकि मदर से एंटीबॉडी प्लासेंटा थ्रू ट्रांसफर होता है, बच्चे को जाता है। क्लियर? होगा होगा तो, पर हाँ इन जनरल केस नहीं होते। पर उसी टाइम उसके पास एंटीबॉडी होगा, पर वो एंटीबॉडी रहेगा नहीं ना। एंटीबॉडी सिक्रेशन होना, जैसे कि आप घर में हो, घर से बाहर निकले, आपका पापा का पॉकेट मनी आपको दिए है, कुछ टाइम तक पॉकेट मनी रहेगा। ये मत सोचना पापा का पास जो पैसा है आपका पास वो पैसा आएगा, अर्न होगा। पापा अर्न कर रहे तो मम्मी एंटीबॉडी का मम्मी में एंटीबॉडी डेवलप होने का सिस्टम है। पापा का पास जॉब है, वो अर्न कर रहे पैसा, पर आपको पॉकेट मनी दिए, जैसे पैदा हुआ उसका पास कुछ एंटीबॉडी के साथ पैदा हुआ, पर कुछ ना एंटीबॉडी खत्म हो जाएगा। चलिए आपका बाहर गया, पॉकेट मनी खत्म हो गया, इसका मतलब नहीं पापा का अर्निंग आपको मिलता रहेगा। नहीं लाइफ लॉन्ग नहीं होगा, वो तो होगा ही, थोड़ा एंटीबॉडी तो आएगी। मम्मी का पास जो भी एंटीबॉडी है बच्चा पैदा उसके पास वो एंटीबॉडी होंगे, हम पढ़ेंगे वो भी। क्लियर? Who were present online? Do you have any question, guys? Mira, Teerth, Fatima, Kalyani, and Ashok. Ashok me. Good. So now I will come to the difference between innate and adaptive. Now this difference will come with 6 marks. 6 मार्क में आएंगे, 4 मार्क भी आएंगे। 4 मार्क के लिए आपका पास लिखने के लिए ऑप्शन है, लिख ही दोगे सीधा, कुछ नहीं है। 6 मार्क में थोड़ा हम ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? फर्स्ट इज इनेट इम्यूनिटी ऑलवेज प्रेजेंट, क्योंकि आपका बॉडी के साथ है, ऑलवेज प्रेजेंट। जैसे घर में पानी हमेशा होता ही है, पिज्जा ही नहीं होता है, पिज्जा कोका कोला असर मंगाना पड़ता है। एडप्टिव क्या? नॉर्मल इज साइलेंट बट ट्रिगर ऑफन एक्सपोजर ऑफ पैथोजन। रिदम गया तो कोका कोला मंगाएगा, नहीं गया तो नहीं मंगाना है। दैट मीन्स इट ट्रिगर होगा व्हेन पैथोजन अटैक्स। क्लियर? पहला बात है ये ऑलवेज प्रेजेंट, ये ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होता है। कौन सा? एडप्टिव। व्हेन इट विल बी कॉमन टू फिगर व्हेन द पैथोजन अटैक्स। क्लियर? सेकंड पॉइंट, rapid response even if 1 minute, but in case of adaptive it will day to week, minimum 1 week लगता है एंटीबॉडी जनरेट होने के कोरोना के लिए। ठीक है, हो सकता है कि इसके लिए 3 दिन लगेगा, किसमें 5 दिन लगेगा, पर मिनट में नहीं होंगे, मिनिमम 3 दिन तो लगेंगे। पिज्जा आने के लिए 20 मिनट्स तो चाहिए, उससे पहले तो नहीं मिलेंगे आपको, राइट? हाँ, इससे पहले हो सकता है किसी का पिज्जा, किसका घर में जाके या पिज्जा वाला को लगा के ले लिए, फ्लोर में किसको देने के लिए जा रहे उसको उठा के ले लेंगे तो हो सकता है, पर ये पॉसिबल नहीं है इस केस में। थर्ड वन, इम्यूनिटी अगेंस्ट पैम्प।
PAMP। वी विल डिस्कस, इसको हम आज से डिस्कस करेंगे। जैसे कि हॉर्स रिदम को पहचानेगा कैसे? उसको पहचानने के लिए चलो हॉर्स को मैं आंख बंद कर दूंगा या इसका मुंह बंद कर दूंगा। मुंह मतलब सॉरी, पूरा हेड को उसमें ढाक दूंगा, हॉर्स का सामने खड़ा करूंगा। दोनों केस में इधर उसका आंख में पट्टी बांध लूंगा, केस 1, और उसका आंख खुला रखूंगा पर इसको ऊपर में भी चढ़ा दूंगा। मुंह मतलब हेड को पूरा बंद कर दूंगा, कोई कवर कर दूंगा। हॉर्स उसको पहचान पाएगा? आवाज थोड़ी करेगा। अच्छा, मैं टेस्ट करूंगा, टच करके पहचान सकते हो ना? देखता हूं, रुको। नहीं पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चल जाएगा? इधर चलो, तो उसमें क्या है ना, वो उसको तो विजन तो चाहिए देखने के लिए, उसको पहचानने के लिए आंख चाहिए और इसका मुंह खुला होना चाहिए, दोनों ऑप्शन होना चाहिए। मतलब हेड, फेस, इसका फेस खुला होना चाहिए, कवर नहीं होना चाहिए, तो अभी वो पहचान पाएगा, नहीं तो नहीं। क्लियर? सेम क्या होता है, कोई भी पैथोजन होता है ना, पैथोजन का ऊपर एक मॉलिक्यूलर पैटर्न होता है। पैटर्न मतलब क्या है? आप ऐसा पैटर्न बनाते हो ना मोबाइल खोलने के लिए, जिगजैग कुछ पैटर्न बनाते हो ना, सेम कुछ कुछ मॉलिक्यूल, 3 ग्लाइसिन होंगे, 2 ल्यूसिन होंगे, 3 प्रोटीन होंगे, ऐसा टाइप का पैटर्न होता है। वो पैटर्न कहां पर होता है? पैथोजन का ऊपर, सरफेस में, पैथोजन का सरफेस में होता है। ग्रेट। कौन पहचानेगा? आपका इम्यून सिस्टम। आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, उसमें कहता है TLR, हम पढ़ेंगे उसको भी, टोल लाइक रिसेप्टर। TLR, टोल लाइक रिसेप्टर। ये टोल लाइक रिसेप्टर क्या करता है? वो PAMP को पहचानता है, जैसे आंख और इसका फेस पहचानने के लिए। ठीक है, टोल लाइक रिसेप्टर इज योर आई, PAMP, पैथोजन एसोसिएटेड। ये तो आपको पता है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, ये किसमें पैथोजन में होता है? ये इम्यून सिस्टम का पास होता है, टोल लाइक रिसेप्टर, और ये किसका पास होता है? पैथोजन का पास। इसमें क्या होता है? पैम्प एसोसिएटेड होता है, याद रखना, ये आपको लिखना है। किसमें पैम्प एसोसिएटेड होता है? इनेट में। इसी से पहचानता है। हाउ डज योर इम्यूनो सिस्टम रिकॉग्नाइज ए माइक्रोब? बाय पैम्प, PAMP. The PAMP is present on the surface of pathogen. Toll-like receptor is present on your immunosystem. Now, this toll-like receptor can recognize the PAMP in that way. The pathogen is being recognized by your system. Am I clear? Just like रिदम हॉर्स का घर में गया, हॉर्स का आंख खुला होगा तो अभी इसको पहचान पाएगा, ऊपर से देखेगा तो, अगर गाड़ी पार्क कर रहा है ऊपर से देखेगा तो, या घर में यहीं बैठ के कुछ काम कर रहा है टेबल का ऊपर और डोर से एंट्री करेगा तो, अगर इसका आंख बंद कर दिया होगा आएगा कुछ पता नहीं चलेंगे। एम आई क्लियर? या इसका आंख खुला है, इसका मुंह बंद है, मतलब फेस बंद है, तो भी पहचान नहीं पाएगा। तो दोनों होना जरूरी है, एक पैम्प, एक TLR। वी विल डिस्कस देम, अच्छे से डिस्कस करेंगे, कौन सा TLR कौन सा पैम्प, पूरा अच्छा डिस्कस हम करेंगे। टाइम हो गया। सो एडेप्टिव में क्या होता है? पैम्प नहीं चाहिए, इतना बड़ा पैटर्न नहीं चाहिए, एक मॉलिक्यूल चाहिए, छोटा सा, जैसे एंटीजन बोलते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। एडेप्टिव इज एसोसिएटेड विद एंटीजन, वहां से एंटीबॉडी बनता है, एंटीजन से एंटीबॉडी बनता है। वी विल डिस्कस डिटेल ऑन एंटीजन एंड एंटीबॉडी बोथ। ओके, सो एंटीजन वहीं पे बनता है, कहां पे? एडेप्टिव में एंटीजन होता है, इनेट में क्या होता है? पैम्प होता है। एम आई क्लियर? पैम्प होता है कहां पे? इनेट में।
पैम्प, टोल लाइट रिसेप्टर सारे इनेट में होता है। वहां पे क्या होता है? एंटीजन। ना कौन सा सेल एसोसिएट होता है? जनरली देर आर फेगोसाइट्स। फेगोसाइट में 3 टाइप का फेगोसाइट हमारा आपका बॉडी में है, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल। ये 3 आर फेगोसाइट्स। फेगोसाइटिक सेल्स देर आर, then natural killer cells, some complement systems, we will discuss on complement system। पर complement से 3 टाइप का है, एक क्लासिकल, दूसरा अल्टरनेटिव, तीसरा मानोज बाइंडिंग लेक्टिन या मानो। 3 टाइप के होते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। उसमें अल्टरनेटिव एंड एमबीएल ये दोनों इनेट के लिए काम करते हैं। क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एडेप्टिव के लिए काम करते हैं। डोंट रिमेंबर दिस थिंग्स, वी विल डिस्कस इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एज वेल। ओके, यहीं पर आपको एक ही चीज याद रखना है, पैम्प एंड एंटीजन। बाकी सारा चीज हमने ऑलरेडी वहां पे पढ़ चुके हैं। 6 मार्क के लिए 5 पॉइंट यहीं पे था, 6 पॉइंट। 6 मार्क के लिए 6 पॉइंट लिखो, मोर देन एनफ। 12 पॉइंट लिखने का जरूरत है ही नहीं। हाँ, पॉइंट रिपीट नहीं होनी है, कंडीशन पॉइंट रिपीट नहीं होना है। अगर आपको 8 पॉइंट लिखना है तो 6 पॉइंट लिखो, फिर 2 पॉइंट रिपीट करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? पर आप 6 मार्क के लिए आपका 6 पॉइंट, आई विल गिव यू 6 मार्क। डन श्योर? ओके, क्लियर? नाउ ये जो क्या बोलते हैं, देयर आर एंटी माइक्रो फिजिकल बैरियर, सर में पढ़ाऊंगा अभी। ओके, पर एडप्टिव में टी सेल, बी सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, there are antigen presenting cell are also there. We cannot understand now antigen presenting cell, but I will discuss in antigen presentation. There is a lecture on antigen presentation, then only you can समझ पाओगे। इतना ज्यादा समझना नहीं है, यहीं पे आपको एक ही चीज समझना है, पैम्प एंड एंटीजन, दैट्स ऑल। ये स्लाइड इज ओवर, बिकॉज ये सारे जो भी लिखा है सारे को मैं पढ़ाऊंगा एक एक लेक्चर में, आधा लेक्चर में एक एक टॉपिक करके। तो होने के बाद फिर इसको समझ जाओगे आप। ये होने का स्लाइड फिर लास्ट में आएंगे, हो सकता है 4-5 लेक्चर का बाद, फिर आप खुद समझ जाओगे हाँ क्या डिफरेंस कर दोगे। ओके, सो इन योर क्यूबी इम्यूनोलॉजी आई हैव सेड यू दिस वन। हैव यू गॉन थ्रू दैट बुक? एक है 4th एडिशन, वो पूरा बुक है, क्योंकि किस किस को माइनर वेरिएशन है, कुछ टेबल कुछ नया चीज आया है। पर 7th एडिशन का मैं जिसको रिफर करके आपको पढ़ा रहा हूं, उसका फर्स्ट चैप्टर ही डाला है मैंने, बेसिक्स ऑफ इम्यूनो सिस्टम उसमें है। जिस टाइम सेकंड चाहिए उस टाइम सेकंड में डालूंगा। किस किस को बहुत ज्यादा पढ़ना होता है ना, इसलिए एक डाल दिया जो थोड़ा वेट के जिसको पढ़ना है। पर 7th चैप्टर में जिस टाइम जरूरत है उस हिसाब से डालता रहूंगा मैं। क्लियर? सो जब भी टाइम होगा पढ़ो। कि देखो, पढ़ना तो जारी रखना है। देखो, कीबेस 7th एडिशन में वहीं पे ये टेबल आपको मिल जाएंगे, वहीं पे भी। रेस्पॉन्स टाइम इनेट में कितना टाइम लगेगा? रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम टाइम, मिनट टू आवर्स। पर एडर 2 में डेज, बहुत टाइम लगेगा। स्पेसिफिसिटी नो स्पेसिफिक, लिमिटेड, फिक्स्ड। नो स्पेसिफिसिटी, फिक्स्ड। घर में कोई भी आएंगे हम पानी ही देंगे फर्स्ट टाइम, दैट इज लिमिटेड फिक्स्ड। बट एडप्टिव में क्या है? स्पेसिफिक एंड हाईली डाइवर्स। डाइवर्स मीन वेरिएबिलिटी। उसका घर में 10 फ्रेंड जाएंगे तो 10 के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट वो करेगा, सभी को एक ही ट्रीटमेंट नहीं करेगा वो। सब किसको अलग अलग ट्रीटमेंट चाहिए ना। तो स्पेसिफिसिटी एंड डाइवर्स, वेरिएबिलिटी इज देयर। रेस्पॉन्स टू रिपीट इन्फेक्शन, रेस्पॉन्स टू रिपीट, कुछ बोला आपने? समझ नहीं पाया अभी भी। हाँ,
रेस्पॉन्स टू रिपीट इन्फेक्शन, यहीं पे सेम होगा। बार बार कोई आ रहा है आपका घर में, आप उसको पहचानते नहीं हो, स्पेसिफिक नहीं बनाना, पानी गिलास ही दोगे, पानी लो पानी लो पानी लो, बार बार कितना बार आए। पर इसमें क्या होगा, अबे रिदम गया नहीं यार, पिज्जा में दूसरा कुछ टॉपिंग चाहिए, फिर याद रखें नेक्स्ट टाइम आप पिज्जा का टॉपिंग होके आएगा फिर। तो इंप्रूव होता रहेगा, धीरे धीरे इंप्रूव होगा, स्पेसिफिक बढ़ता रहेगा। तो प्राइमरी एडेप्टिव प्राइम इसमें एडेप्टिव रिस्पॉन्स क्या धीरे धीरे बढ़ता है। प्राइमरी एडेप्टिव रिस्पॉन्स, सेकेंडरी एडेप्टिव रिस्पॉन्स, अब पढ़ेंगे प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स ज्यादा स्ट्रांग होगा ना, सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स ज्यादा स्ट्रांग, सेकेंडरी ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि डेवलप किया है। ये फर्स्ट टाइम जाएगा, सेकेंड टाइम जाएगा, सब पिज्जा चाहिए, थर्ड टाइम जाएगा और अच्छे से पिज्जा मिलेगा इसको, लाइक दैट थिंग्स। द मेजर कंपोनेंट्स, what are the components are associated here? There are barriers, phagocytes, molecular patterns, okay, all these are there, pattern recurring occur. But in case of adaptive, there are T cells, B cells, antigen specific receptors, antibodies, all these are present in your adaptive immune system में antibody नहीं आता है, antibody आता है, सॉरी उल्टा बोला मैंने, इनेट में, सॉरी इनेट में एंटीबॉडी नहीं आते, ओनली आते एडेप्टिव में। ओके, सो नाउ आई विल कम टू द इनेट इम्यून सिस्टम। वी विल स्टार्ट विथ इनेट। इनेट मतलब શું છે? रुको, नो मैं पूछता हूं यहां से। कथा, कथा भेकारिया, अनम्यूट योरसेल्फ। देखो आप लोग 6 हो, अनम्यूट करो। कथा भेकारिया, कैन यू अनम्यूट? चलो, if you are not listening me, I assume that you are not present there. Yes, sir. No, I'm talking Katha. Mira unmute. Yes, sir. innate immune system એટલે શું છે? એટલે या એટલે बताओ तीर्थ। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब कोई भी पैथोजन अंदर एंटर होगा तो सबके लिए सेम रिएक्शन, और उसका मेन फंक्शन लाइक जो भी अंदर एंटर होगा उसको किल ही करना है, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है उसमें। So innate मतलब come along with the birth. Very good. Okay. Kalyani, can you add something on Tirth? Yes, sir. Can you add? Come along with birth. Yeah, along with birth. Very good. Okay, good. So now I will come to this one. Innate immune system overview. What are the overview? ओवरव्यू मतलब ऊपर से देखना है। राजकोट का ओवरव्यू हेलीकॉप्टर में चढ़ के ऊपर से देख लेना है, दैट्स ऑल। ओवरव्यू ऊपर से देखना है। हाँ, इसलिए तो ओवरव्यू ऊपर से देखना है। सो मैंने आज ओवरव्यू कराता हूं, आज ऊपर से हेलीकॉप्टर में दिखाता हूं, कल पूरा या नेक्स्ट क्लास में पूरा हम अंदर जाके पढ़ेंगे अच्छे से। पर आपको ओवरव्यू याद नहीं होंगे, मैं ऊपर से दिखाऊंगा। ये रेस कोर्स है, इसका ईस्ट में कोई मार्केट आता है उसका, क्योंकि राजकोट बारे में जितना जरा पता नहीं है। यहाँ से आगे जाके लेफ्ट जाओगे तो मारवाड़ी कॉलेज आएंगे, मतलब यूनिवर्सिटी आएंगे। वहां से आगे जाओगे तो दूसरा कुछ आएंगे, वहां से आगे जाएंगे तो शॉप मॉल आएंगे। ये बिग बाजार है। ऊपर से देखना है हमें, राइट लेफ्ट करके समझना है जस्ट। फिर हम, क्योंकि ऊपर से होंगे आपको पता चलेगा। ओवरव्यू होना तो चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में, नहीं तो कुछ पता नहीं चलेंगे। मैं ऊपर से आपको राजकोट में हेलीकॉप्टर में दिखाऊंगा। हाँ, ये बिग बाजार है, देखो बिग बाजार मार्क करो। अभी ये है आपका डीमार्ट, दोनों मार्क करो। अभी बिग बाजार डीमार्ट कैसे जाओगे आप देखोगे, हाँ यहाँ से रास्ता ऐसे जा रहा है, ऐसे राइट ले जाऊंगा। फिर आपको मैं बिग बाजार छोड़ूंगा, जाओ डीमार्ट, तो जा पाओगे।
क्यों आपको पता है डायरेक्शन कहाँ पे, ईस्ट वेस्ट, कुछ आता पता नहीं, बिग ब्रदर खड़ा कर दो जाओ डिमांड, कहाँ जाओगे बेटा? किसको पूछोगे? बड़ी में थोड़ी कुछ पूछने कुछ होता ही नहीं है, ये किसको पूछेगा? मेरा एडमिनिस्ट्रेशन, सोनल का एडमिनिस्ट्रेशन पूछेगा क्या है उसमें, तो नहीं होंगे। समझ रहे? तो ओवरव्यू चाहिए, हर चीज के लिए ओवरव्यू चाहिए, इसलिए बुक में प्रीफेस लिखा जाता है, हमें कभी नहीं पढ़ते उसको, कंटेंट को कभी नहीं देखते, इट इज लाइक ओवरव्यू। एनीवे, innate immune system, it is two type, again innate, एक एक्सटर्नल डिफेंस, एक इंटरनल डिफेंस। जो भी innate, जो भी आपका इम्यूनिटी along with birth is coming, पैदा होने का साथ आपका पास जो भी innate immune system आता है, जो नॉन स्पेसिफिक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, बहुत जल्दी रैपिड रेस्पॉन्स करता है, स्पेसिफिक नहीं है, मेमोरी नहीं है, जिसका बात हम बात कर रहे थे, और जिसका साथ पैम्प एसोसिएटेड है, 6 के 6 पॉइंट में बोल दिया, राइट? वो इम्यून सिस्टम करने के लिए उसका पास दो मैकेनिज्म है, एक एक्सटर्नल, वन इज एक्सटर्नल, द अदर वन इज इंटरनल। एक्सटर्नल में वेर व्हिच आर एसोसिएटेड एक्सटर्नल, देयर इज स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, there are mechanical barriers are also there, there are chemical barriers also there, there are biological factors also there external में, we will discuss one by one them, ठीक है? अभी क्या क्या देखो, लैंडमार्क करो, राजकोट में क्या क्या है, फिर उनको बारे में बाद में जाके नीचे जाके पढ़ेंगे, ऊपर से हम लैंडमार्क कर रहे हैं। एक्सटर्नल में क्या क्या है, राजकोट का ईस्ट में क्या, राजकोट दो पार्ट कर दे, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट में क्या क्या है लैंडमार्क करते हैं हम, फिर उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या क्या करेंगे, तो फिर लैंडमार्क तो करना पड़ेगा हमें। तो एक्सटर्नल डिफेंस में क्या क्या है, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, बैरियर, देयर आर सम मैकेनिकल एंड केमिकल बैरियर आल्सो, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, तीन फैक्टर है, याद रखो। स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन है, उसका सिवा तीन फैक्टर है, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, तीन फैक्टर याद रखो, वो तो याद रह जाएंगे। केमिकल, चलो स्किन छोड़ दो, ओके, तीन याद रखो, लास्ट तीन फैक्टर, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये तीनों एक्सटर्नल में। चलो स्किन एंड म्यूकस छोड़ दो, वो नहीं याद रखो भी चलेंगे, कि मैकेनिकल में हम पढ़ेंगे उनको, ओके? कितना फैक्टर एक्सटर्नल में? तीन फैक्टर, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, ओके? बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, बीएमसी, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल, ओके? या बड़ौदा म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन आप लिख याद रख सकते हो, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल, ओके? बड़ौदा म्युनिसिपैलिटी का बीएमसी। नाउ इंटरनल में, हाँ, दैट इज बीएमसी, ओके? नाउ इंटरनल में आएंगे, some kind of cells. What are the cells? There are phagocytic cells. These phagocytic cells, they will phagocyte पूरा खा लेंगे. There are antimicrobial peptides. कुछ secretion वहां से होंगे, peptides उससे मरेंगे. Complement system is there. We have discussed on that. Natural killer cells, NK cells, then inflammatory responses. इसमें phagocytic and natural killer cells हो तो आपको याद रहेंगे, phagocytic cells, natural killer cells, some proteins, complement system, all these things are come along with your internal defense. So innate immune system again दो टाइप से काम करते हैं, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक्सटर्नल में आप पाएंगे बीएमसी, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, केमिकल, पर इंटरनल में आएंगे आपको फैगोसाइटिक सेल्स, कुछ सेल होता है जो अंदर में, अंदर में है ना, कुछ सेल है फैगोसाइटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स,
नाउ देर आर सम, 2 सेल लिख दिया, 2 मॉलिक्यूल का नाम भी लिख दो। 2 मॉलिक्यूल क्या है आपका? एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, वो भी प्रोटीन से। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मतलब कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल है। कि इसको कॉम्प्लीमेंट इसलिए बोलते हैं कि आपका इम्यूनिटी के लिए काम करता है। वही छे, एग्जैक्टली वही छे। पर C8 C9 ओके, उससे पहले भी बहुत सारा मॉलिक्यूल स्टार्ट है, C1 से स्टार्ट होता है। एनीवे सही है, आपने ठीक बोला। सो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। Okay, so now I will share your attendance link. If you have any question, you have 5 minutes to ask me. WhatsApp मेरा अटेंडेंस में एक लिंक होता है लास्ट में, फीडबैक ऑफ द लेक्चर, मुझे चाहिए होता है। क्योंकि थोड़ा देर में आप वहां पे लिखोगे, अभी नहीं लिख रहे हो तो लिखोगे ये कंपोनेंट समझ में नहीं आया है, कुछ कभी कभी होता है ना, कोई ऑनलाइन होता है पता नहीं चलता है ना, उसने समझ नहीं पाता, वो एटलीस्ट उसमें तो ठीक कर सकते हो। मैंने किया है लिंक। मैं लिंक शेयर किया है, प्लीज। लास्ट क्लास कहाँ थे? लास्ट क्लास कहाँ थे? मैंने झूठी बोला? आपका तो अटेंडेंस भरा, मतलब पता नहीं चला आप ऑनलाइन में ही थे। आपका अटेंडेंस मैंने भरा है ना, तो मुझे पता है ना ऑनलाइन ही थे, क्लास में। ऑनलाइन से मेरे हिसाब से ऑफलाइन ज्यादा इफेक्टिव होता है। नो, आई एम नॉट फोर्सिंग टू अटेंड ऑफलाइन। कोशिश। आरती और कृति कहाँ गई? जल्दी उठो। हाँ, सुनाम चाहे कहाँ गए थे अभी तक? अभी सही है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। देखो मैं पूछ रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपको कंपाइल करो, आप ऑफलाइन आके बैठो यहीं पे। अभी जब तक गवर्नमेंट आपको थोड़ा छूट में रहो, आओ। पर इट्स माई अपील टू कॉमन क्लास। अपील मतलब मेरा रिक्वेस्ट है, आपके बैठो तो अच्छा लगेगा। संदीप से बनराज। अच्छा, बनराज श्रीराज 2 है। श्रीराज सिंह आप कहाँ से हो? बनराज सिंह, श्रीराज सिंह कहाँ से? जूनागढ़ से। जूनागढ़ तो बोलो भाई। हाँ हाँ, कर दो कर दो। So now I will stop here. Thank you for listening me. Have a great day. Bye.